देखिए लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया अबाउट वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक इंडाइसेस एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंडाइसेस, वेदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंडाइसेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। और एक हमने इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज ऑल एच टी सी। When angle is between 0 to pi by 2, that is 90 degree, all indices will have positive values. When angle is between pi by 2 to pi, which is 180 degree, S, that means only sine and cosec are positive value. Angle between pi to 3 pi by 2, that is 270 degree. T, that means only tan and cot are positive. And from 3 pi by 2 to 2 pi, that is 360 degree. Only cos and sec will have positive values. अगर एंगल 360 से बड़ा है तो अगेन यू हैव टू कंप्लीट दिस सर्कल। इफ इट इज बिटवीन 360 टू 360 प्लस 90 और 360 टू 360 प्लस 180, द वैल्यूज विल कीप ऑन चेंजिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। दे आर पीरियोडिक अप टू वी कैन से 2 पाई। हर 2 पाई इंटरवल के बाद उनकी वैल्यूज जो है वो रिपीट होती जाएगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 90 डिग्री तक के तो सारे हमें वैल्यू पता है, उसका टेबल भी जो है हमने देख लिया। एंगल अगर 90 से ज्यादा है, राइट नाउ विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 360 डिग्री। फिर 360 के बाद आप वापस से वही सर्कल जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो इफ वैल्यूज आर greater than 90 degree, how to find out the values of trigonometric indices? So we have some formulas over here. The two formulas that I am going to use, pi by 2 minus theta and pi by 2 plus theta. Now one more thing that we will discuss over here, that sine and cos are two complementary indices. Tan and cot are two other complementary indices. Cosec and sec are two complementary indices. For formula of pi by 2 minus theta, function changes to its complementary indices. Even for pi by 2 plus theta, function changes to its complementary indices. Let us see how it works out. Let us just see how it works out. For example, if I write formula of sine pi by 2 minus theta or sin 90 minus theta, pi by 2 minus theta and 90 minus theta are one the same thing. Sin pi by 2 minus theta, this function, because it is pi by 2 minus theta, will change to cos of theta. Now whether this function is positive or negative, so pi by 2 minus theta, whenever you are changing your angle, you are decreasing your angle from pi by 2, you are going back into the first quadrant, and in first quadrant all indices are positive. So for pi by 2 minus theta, function changes but indices remain positive for all the functions. Next one, the formula is cos of pi by 2 minus theta. Now just as sin pi by 2 minus theta changes to cos theta,
Similarly, cos pi by 2 minus theta will change to sin theta. Here also cos pi by 2 minus theta, you are going back into the first quadrant. Angle is decreasing. We are going into the first quadrant. In first quadrant, all indices are positive. Tan pi by 2 minus theta. We have already discussed that tan and cot are two complementary indices. So tan pi by 2 minus theta will change to cot theta, and cot pi by 2 minus theta will change to tan theta. Pi by 2 minus theta will be in first quadrant, so we are not worried about the sign. They all will remain positive as always. Sec pi by 2 minus theta becomes cosec theta, and cosec pi by 2 minus theta will be equal to sec theta. Let us just take a very small example of what we have discussed over here. We already know value of sin 30, and it is equal to 1 by 2. Now let me change this into the cos function. So sin 30 can also be written as cos 90, rather sin 90 minus 60. With 30 degree can be written as 90 minus 60 or pi by 2 minus 60. Sin pi by 2 minus theta. Sin pi by 2 minus theta will change to cos theta. So this value becomes cos 60. And as we all know, value of cos 60 also equals to 1 by 2. So you can change your angle into sin to cos. You can change your indices from sin to cos or from cos to sin using this formula. Now we move to the next one, pi by 2 plus theta. Over here also I have written that function changes. Sin pi by 2 plus theta. Sin pi by 2 plus theta function will change. It will become cos theta pi by 2 plus theta. That means you are going into the second quadrant. You are going into the second quadrant, and in second quadrant sign will remain positive. So sin pi by 2 plus theta in second quadrant is positive. So over here we will have sin pi by 2 plus theta as plus cos theta. It will be a positive sign. याद रखिए आपको ये जो पहले जो क्वेश्चन है बेसिकली sin pi by 2 plus theta, उससे डिसाइड करना है कि whether this will be a positive sign or a negative sign. जो आंसर आ रहा है cos से डिसाइड नहीं करना है. So sin pi by 2 plus theta, you are going in second quadrant, it becomes plus cos theta. Sin pi by 2 cos rather pi by 2 plus theta. Cos pi by 2 plus theta. Now again function will change. So cos will change into a sin form. Pi by 2 plus theta again in second quadrant. Here you are moving in first quadrant. Here in all cases you are moving in second quadrant. From that formula, all STC in second quadrant only sin and cosec will remain positive. Rest everything is negative. So cos pi by 2 plus theta in second quadrant it becomes negative. So it is basically minus sin theta. Now from sin and cos I move to tan pi by 2 plus theta. We all know it should be equal to cot theta. Now on the sine, tan in second quadrant is also negative only. Cos and sec are positive, so even this will be
minus cot theta. Cot pi by 2 plus theta, it will be tan theta. Even this is minus. Cosec pi by 2 plus theta, it will be sec theta. Function change, and only sin and cosec will be positive, as we already discussed. Rest everything will be negative. Sec pi by 2 plus theta, it will be equal to minus of cosec theta. So these are the formula for pi by 2 plus theta form. pi by 2 plus theta form में आप देख सकते हो, there are two things जो हमें ध्यान में रखनी है. Function changes of each indices. Only sin and cosec will give you a positive value second quadrant. Rest everything will be negative. तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं. अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी है tan of 150 डिग्री की, अब हमें पता है कि हमारे पास जो टेबल है, वो टेबल जो है वो सिर्फ 90 डिग्री तक का है. तो एंगल में 150 आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो हम इसे इस पाई बाय 2 प्लस थीटा के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं. tan 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं? tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज बेसिकली tan पाई बाय 2 प्लस 60 डिग्री. अभी हमने डिस्कस किया पाई बाय 2 प्लस 60 है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा वाला जो फॉर्म है वो फंक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज होगा. सो इसकी वैल्यू होगी हमारी cot 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव तो ये होना चाहिए माइनस cot 60. अब cot 60 की वैल्यू क्या है? 1/3. तो आंसर विल बी minus 1/3. So from here it is quite clear that tan 150 degree is minus 1/√3. आ रहा है आपको समझ में? काफी सिंपल ये जो चीज है. See now we have already discussed about one basic formula of pi by 2 plus theta and pi by 2 minus theta. Now we'll discuss another two formula which are useful, that is pi minus theta and pi plus theta. For pi minus theta and pi plus theta, for pi minus theta and pi plus theta, in both the cases function remains same. Over here also function remains same. In both the cases function will not change. जैसे पाई बाय 2 में साइन का cos हो रहा था, cos का साइन हो रहा था, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा. फंक्शन की वैल्यू जो है वही इंटैक्ट रहेगी. फॉर्मूला काफी सिंपल हो जाएंगे. तो फिर देखिए sin पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा, cosec पाई माइनस थीटा और sec पाई माइनस थीटा. इन सब के आंसर्स मेरे क्या होंगे? इन सब के आंसर्स सेम ही होंगे. sin थीटा का sin थीटा है, cos पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज tan थीटा, cot पाई माइनस थीटा इज cot थीटा, cosec पाई माइनस थीटा इज cosec थीटा और sec पाई माइनस थीटा जो है वो sec थीटा. लेकिन अब बात करते हैं sin की. पाई माइनस थीटा मतलब हम कहां जा रहे हैं? पाई माइनस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है ऑल एसपीसी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin और उसका रेसिप्रोकल जो cosec है वो दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे जो है वो नेगेटिव होंगे. याद रखिए फॉर्मूला याद करना काफी सिंपल है. आपको दो चीज याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा इंडाइसेस पॉजिटिव या नेगेटिव है, और दूसरी चीज कि पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 प्लस और माइनस में फंक्शन चेंज होगा और पाई और 2 पाई का फंक्शन चेंज नहीं होगा. तो पाई माइनस थीटा का फंक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है.
sin pi minus theta is sin theta only, even cos pi minus theta is cos theta only, but sin pi minus theta, because we are in second quadrant, sin is positive, so it will be plus sin theta, and in second quadrant cos is negative, so it is minus cos theta. अब जिस तरह ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किए, चलो हम पाई प्लस थीटा के भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे sin पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, cot पाई प्लस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा, एंड फाइनली sec पाई प्लस थीटा। ये जो सारे फंक्शन है हमारे, पाई प्लस पे भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, tan विल रिमेन tan, cot विल रिमेन cot as it is, cosec and sec also does not changes. पाई प्लस थीटा, पाई प्लस, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और एसटीसी के रूल से थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और उसका जो रेसिप्रोकल है cot वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पाई प्लस थीटा का भी फॉर्मूला जो इजीली डिराइव हो जाता है, sin पाई प्लस थीटा sin थीटा ही होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो sin नेगेटिव होगा, तो इट विल बी माइनस sin थीटा, tan पाई प्लस थीटा is tan theta, in third quadrant tan is positive, so it will remain positive. Let us take one or two example from this segment. जैसे कि हम एक वैल्यू लेके आ रहे हैं tan sin of से 210 डिग्री, अब ये वैल्यू है 210 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है हमारा 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे sin ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। sin 180 प्लस 30 मतलब क्या होगा, sin पाई प्लस 30 डिग्री, sin पाई प्लस थीटा, मैंने बोला फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये sin 30 रहेगा, sin पाई प्लस है मतलब कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो इट विल बी माइनस sin 30, सो वैल्यू विल बी माइनस 1/2। सिमिलरली अगर मेरे पास वैल्यू है tan ऑफ 225 डिग्री, तो tan 225 को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, ये भी 180 से बड़ा है, तो ये वैल्यू आएगी tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 degree. You can see 180 plus 45 is 225. This becomes tan of pi plus 45 degree. Pi plus theta function does not change. तो tan 45 रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, so this will be what, +1। तो आप देख सकते हो हम लोग जो है ये फॉर्मूला को यूज करके इजीली हायर एंगल्स की भी जो है वो वैल्यू ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो है 3π/2। तो हमारे दो फॉर्मूला आएंगे 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा। जैसे π/2 प्लस थीटा और π/2 माइनस थीटा में फंक्शन चेंज हो रहा था, वैसे 3π/2 में भी फंक्शन जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे भी फंक्शन जो है वो चेंज होगा। तो सारे फॉर्मूला हमारे क्या आएंगे, जैसे sin 3π/2 माइनस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा, cosec 3π/2 माइनस थीटा और sec 3π/2 माइनस थीटा। फंक्शन कैसे चेंज होंगे?
यहाँ पे ध्यान दीजिए, how we can change this function. Sin will get converted into cos, cos will get converted into sin, जैसे हम पहले लिख रहे थे वैसे ही tan का जो है वो cot होगा, cot का tan, cosec का sec और sec का cosec थीटा। काफी सिंपल है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा में फंक्शन चेंज हो रहा है, तो sin 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, सिमिलरली tan का cot और cot का tan, ऐसे हमें वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यू आर गोइंग इन विच क्वाड्रेंट? 3 पाई बाई 2 माइनस 270 से कम, मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमने बात की, सिर्फ tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे जो है वो हमारे नेगेटिव हमें मिलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ये दो इंडाइसेस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी नेगेटिव। तो हमारी इजीली फॉर्मूला बन गया, sin 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड सो ऑन। अब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, sin 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, cot 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, cosec 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड sec 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। यहाँ पे भी क्या होगा भाई, यहाँ पे भी जो है फंक्शन, क्योंकि 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में है तो चेंज होगा। क्या वैल्यूज बनेगी हमारी, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, फंक्शन का इंडाइस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इंडाइस में चेंज हो जाएगा, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक। अब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस, हम जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एसटीसी रूल के हिसाब से कॉस और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेक वो दोनों पॉजिटिव होंगे, कॉस और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब जो है वो नेगेटिव होंगे। तो काफी सिंपली हम जो है ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। अब हम पहले 2 पाई के भी इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, उसके बाद में जो है हम जनरल इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला है 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। जैसे पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होते, उसी तरह 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा में भी फंक्शन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन रिमेन्स सेम, फंक्शन रिमेन्स सेम। मतलब आपको पता होना चाहिए पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा, वहां पे फंक्शन सेम रहेगा। और पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, वहां पे फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, चलो sin 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा, sec cosec 2 पाई माइनस थीटा एंड sec 2 पाई माइनस थीटा। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो sin 2 पाई माइनस थीटा sin थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा is tan थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा is cot थीटा, cosec 2 पाई माइनस थीटा is cosec थीटा और sec 2 पाई माइनस थीटा जो है वो sec थीटा।
किसमें अब पॉजिटिव साइन आएगी, किसमें नेगेटिव साइन आएगी, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो सिर्फ कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। cos 2 पाई माइनस थीटा और sec 2 पाई माइनस थीटा ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे फंक्शंस जो है वो हमारे नेगेटिव होंगे एज यूजुअल। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब हम कहां आ रहे हैं, 2 पाई प्लस समथिंग, यू आर मूविंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। sin 2 पाई प्लस थीटा cos 2 पाई प्लस थीटा tan 2 पाई प्लस थीटा cot 2 पाई प्लस थीटा cosec 2 पाई प्लस थीटा और sec 2 पाई प्लस थीटा। फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन की वैल्यू में साइन ही मिलेगी। साइन cos tan cot cosec all indices will remain as it is. This trigonometric function will remain as it is. And one more thing, because you are moving in first quadrant, in first quadrant all trigonometric function have positive value, तो यहाँ पे सबकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। So we can see it is very simple to derive this formula. याद हमें क्या रखना है, पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 प्लस में फंक्शन चेंज होगा। 3 पाई बाय 2 माइनस और 3 पाई बाय 2 प्लस में फंक्शन चेंज होगा, मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, tan का कॉट होगा, कॉट का tan होगा, कोसेक का सेक होगा और सेक का कॉस होगा। फंक्शन चेंज होगा। पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। उस तरीके से सेक कोसेक या कॉट उनकी वैल्यूज वही रिस्पेक्टिव रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑल एसपीसी जो हमने यूनिट सर्कल से डिराइव किया है उस ट्रिक का यूज। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। एफ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। टी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। हमने जो फॉर्मूलाज देखे अब उनका यूज एग्जांपल्स के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे किया जाए वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, ये हमने पहले भी देखा कि sin 120 डिग्री। अब ये sin 120 डिग्री को मैं दो तरीके से चेंज कर सकता हूं। इसे या तो मैं ये फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, sin 90 प्लस 30, या दूसरा ये जो चेंज हो सकता है sin 180 माइनस 60। 90 प्लस 30 भी 120 होगा, 180 माइनस 60 भी 120 होगा। sin 90 प्लस 30 इट इज बेसिकली sin पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री। sin 180 माइनस 60 sin पाई माइनस 60 डिग्री। अब फॉर्मूला की बात करें हम तो sin पाई बाय 2 प्लस थीटा हमने देखा था कि पाई बाय 2 प्लस और माइनस में फंक्शन चेंज होगा, तो sin पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बी cos 30। पाई बाय 2 प्लस हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू प्लस ही आएगी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin पाई माइनस 60, अगर ये फॉर्म से हम जाए, ये तरीके से हम आगे बढ़े, पाई माइनस 60 क्या होगा, पाई माइनस या पाई प्लस फंक्शन चेंज नहीं होगा, इट इज sin 60 एज इट इज।
बात है, वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी, sin 60 इज आल्सो √3/2। तो आप देख सकते हो sin 120 को या तो मैं π/2 प्लस के फॉर्म में लेके जाऊं या पाई माइनस के फॉर्म में लेके जाऊं, दोनों फॉर्म में उसकी वैल्यू जो है वो मुझे √3/2 ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हम एंगल की बात कर रहे हैं, चलिए कोई भी हम रैंडम एंगल यहां पे लेना है। जो एंगल हम ले रहे हैं वो है, या तो जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं अब वो है tan 210 डिग्री। tan 210 डिग्री, इसके आंसर हम कैसे ढूंढ सकते हैं? इसे भी मैं एक ये फॉर्म में लिख सकता हूं, या तो tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या दूसरा मेरा वे है वो है tan 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। दोनों से हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे फाइनल आंसर्स क्या आते हैं। tan 180 प्लस 30 मतलब कि tan पाई प्लस 30, पाई प्लस पाई माइनस फंक्शन डज नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज tan 30 only. Pi plus theta we are doing in second quadrant, function will remain positive. tan 30 की वैल्यू क्या होगी? tan 30 is 1/√3, so answer of tan 210 will be plus 1/√3। अगर इस फॉर्म में जाता हूं मैं tan 270 माइनस 60 डिग्री, तो जो है आंसर मुझे क्या मिलेगा? इसे मैं 270 डिग्री को 3π/2 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकता हूं। 3π/2 प्लस और माइनस थीटा, फंक्शन चेंजेस cot 60, 3π/2 माइनस, we are going in third quadrant. In third quadrant the value must be positive of tan and cot, so it is cot plus cot 60, answer is plus 1/√3। आप देख सकते हो कि एक ही एंगल की वैल्यू हम जो है वो दो तरीके से इजीली ढूंढ सकते हैं। एक तीसरा एग्जांपल इसके अंदर हम लेते हैं, वो है अब हमारा cosec of 315, cosec 315 किस दो तरीके से लिख सकते हैं इसे? cosec 270 प्लस 45, दूसरा तरीका cosec 360 माइनस 45। चलो दोनों वे से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। cosec 270 प्लस 45, cosec 3π/2 प्लस 45, 3π/2 प्लस थीटा, फंक्शन चेंजेस, so it is sec 45। cosec 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ ऑल एसटीसी मतलब cos और sec ही पॉजिटिव होंगे, cosec नेगेटिव होगा तो इट विल बी माइनस sec 45। और sec 45 की वैल्यू क्या होती है? sec 45 की वैल्यू cos 45 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल, सो आंसर विल बी -√2। अब हम यहां देखते हैं cosec 360 माइनस 45, cosec 360 माइनस 45 इसे cosec 2π माइनस 45 भी लिखा जा सकता है। 2π माइनस 45 मतलब के इसे मैं लिख सकता हूं 2π माइनस थीटा है तो cosec 45 भी 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन cosec will be negative, so answer comes out to be -√2। मतलब कोई भी आप फॉर्मूला यूज करो, आप अब 0 से लेके 360 तक के सारे फॉर्मूलाज इजीली यूज कर सकते हो। अब देखिए ये तो हमारी बात हो गई 360 डिग्री तक के एंगल ढूंढने की।
एंगल की वैल्यू 360 से भी ज्यादा हो सकती है, तो वो केस में हम क्या करेंगे? वो केस के लिए एक सिंपल लॉजिक का हमें इस्तेमाल करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कि उनका पीरियड कितना है 2 पाई का। 2 पाई के बाद वो फंक्शन रिपीट हो जाते हैं, मतलब कि sin cos tan हमने जो देखा 2 पाई प्लस थीटा इज सेम एज sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। तो अगर एंगल जो है हम 360 तक आए तो हमें यहां तक जाना है, ये 2 पाई तक या 360 डिग्री तक। एंगल इससे बड़ा होगा तो जो पहले हमने जो फॉर्मूले यूज किए उसे हमें वापस रिपीट करना है, मतलब कि एंगल यहां मान लो 360 से 360 प्लस 90 मतलब कि 450 डिग्री तक है, तो हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करेंगे। और अगर 450 से 490 इसके अंदर ऐड कर ले 540 डिग्री तक, तो उसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे। तो सारे ऐसे मल्टीपल्स, अब वापस से एक सर्कल पूरा हो जाता है, वापस यहाँ पे आ जाते हो तो ये एंगल 2 पाई से बढ़ के 4 पाई हो जाता है, या तो 720 डिग्री होता है। अगेन एक सर्कल आप पूरा करते हो तो ये 4 पाई से वैल्यू और 2 पाई इतनी बढ़ जाती है, तो ये कितनी हो जाती है 6 पाई। तो सिर्फ पाई बाय 2 नहीं, लेकिन पाई बाय 2 एक सर्कल पूरा कर लो, वापस यहाँ आओगे तो 5 पाई बाय 2 और एक सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आओगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी होगी 11 पाई बाय 2। तो आप देख सकते हो ये जो सारे वैल्यूज है पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, वही फॉर्मूले 5 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा या 11 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा के लिए वैलिड है। यहाँ पे पाई के साथ साथ ये जो वैल्यू है एक सर्कल पूरा करके आओगे 3 पाई या एक और सर्कल पूरा करके आओगे तो ये वैल्यू जो होगी वो होगी 5 पाई। तो जो पाई प्लस और माइनस थीटा के फॉर्मूलाज है वो 3 पाई प्लस और माइनस थीटा या 5 पाई प्लस और माइनस थीटा में वैलिड होंगे। सिमिलरली 3 पाई बाय 2 में अगर हम एक सर्कल कंप्लीट करके आते हैं इट विल बी 7 पाई बाय 2, और अगर एक सर्कल कंप्लीट करके आते हैं, सॉरी ओवर हियर दिस वैल्यू शुड बी 9 पाई बाय 2 एंड ओवर हियर इट शुड बी 11 पाई बाय 2। हियर 2 पाई 4 पाई 6 पाई जो कि ये सारे मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ ही लेते हो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है उनको भी यहाँ से अच्छा एक आइडिया मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज की। तो एक सबसे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है वो है स्क्वायर फॉर्मूला, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके अलावा दो और फॉर्मूला है स्क्वायर फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इजीली आप डिराइव कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू मिलेगी हमें cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं हमारे स्क्वायर फॉर्मूला। 2 थीटा के फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह है, sin 2 थीटा जो है उसका फॉर्मूला है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा। उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन हम जो ज्यादा यूज करते हैं ये यूज करते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद tan 2 थीटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारे हमारे 2 थीटा के फॉर्मूला है। देन अगेन वी हैव a plus b forms, sin of a plus b सिंपल है, इट इज sin a cos b plus cos a sin b। sin of a minus b is sin a cos b minus cos a
sin b। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे cos ऑफ a प्लस b की, जैसे sin a प्लस b का फॉर्म हमेशा sin cos cos sin होता है, लेकिन cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos cos sin sin, cos a cos b। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस sin a sin b, sin ऑफ सॉरी cos ऑफ a माइनस b, इसके लिए फॉर्मूला हमारा cos a cos b प्लस sin a sin b। फाइनली हम tan के लिए आएंगे, tan ऑफ a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, एंड tan ऑफ a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ही फॉर्मूला दिया। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूलाज है सारे। ये जो पहले सेट ऑफ इक्वेशन लिखे वो स्क्वायर इक्वेशन है, दूसरे सेट ऑफ इक्वेशन है वो 2 थीटा वाले फॉर्म है, और तीसरे सेट ऑफ इक्वेशन लिखे हो मैंने a प्लस b फॉर्म के इक्वेशन है।